ఈద్ ఉల్ అదా బక్రీద్ నమాజ్ ఘనంగా ప్రశాంతంగా జరుపుకున్నాం. పాత ఈద్గా కబ్రస్థాన్ అధ్యక్షులు అబ్దుల్ హాదీ షహారీ తాండూర్ ఈరోజు జూన్ 7వ తేదీన ముస్లిం మైనారిటీల పవిత్ర పండుగగా భావించే బక్రీద్ పండుగను ఘనంగా ప్రశాంతంగా జరుపుకున్నామని పాత ఈద్గా కబ్రస్థాన్ అధ్యక్షులు అబ్దుల్ హాదీ షహారీ తెలిపారు. బక్రీద్ పండుగను సందర్భంగా పాత ఈద్గాలో తెలంగాణ రాష్ట్ర చీఫ్ విప్ డాక్టర్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి, తాండూరు ఎమ్మెల్యే బి మనోహర్ రెడ్డి, తాండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి హాల్సరే ముస్లిం సోదరులకు మరియు కమిటీ సభ్యులకు బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పాత ఈద్గా కబ్రస్థాన్ అధ్యక్షులు అబ్దుల్ హాదీ షహారీ మాట్లాడుతూ పాత ఈద్గా ప్రాంగణంలో బక్రీద్కి నమాజ్ చేసుకోవడానికి వచ్చే ముస్లిం సోదరులకు 400 మందికి పాదరక్షలను భద్రపరచుకోవడానికి ఈ ఏడాది నుంచి ప్రత్యేక సదుపాయం ఏర్పాటు చేసినట్టు తెలియజేశారు. పాత ఈద్గా అభివృద్ధి కోసం ఇక్కడ అతిథిగా వచ్చిన తెలంగాణ రాష్ట్ర చీఫ్ విప్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే బి మనోహర్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డిని పాత ఈద్గా మరియు కబ్రస్థాన్ కోసం సహకరించాలని కోరారు. బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా సహకరించిన అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కు మరియు ఎలాంటి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా పోలీసు శాఖ, మున్సిపల్ శాఖ మరియు ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్లకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా అతిథులు మాట్లాడుతూ పాత ఈద్గా అభివృద్ధికి ఖచ్చితంగా మా వంతు సహకారం మీకు అందిస్తామని తెలిపారు. బక్రీద్ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ మాజీ వైస్ చైర్మన్ మరియు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు అబ్దుల్ రాహూఫ్, టీపీసీసీ ప్రచార కమిటీ సభ్యులు కరణం పురుషోత్తం రావు, తాండూరు ఏఎంసీ చైర్మన్ బాలరెడ్డి, బీఆర్ఎస్ పట్టణ అధ్యక్షుడు అపు నయ్యం, పాత ఈద్గా కబ్రస్థాన్ అధ్యక్షుడు అబ్దుల్ హాదీ షహారీ, ఉపాధ్యక్షులు సయ్యద్ సాజిద్ అలీ, జనరల్ సెక్రటరీ సయ్యద్ హబీబ్ లాలా, ట్రెజరర్ బిఆర్ యూనస్, జాయింట్ సెక్రటరీ ముజీబ్ హుస్సేనీ, కమిటీ మెంబర్స్ నాబీ సబార్, అబ్దుల్ ఖయ్యూమ్, చావుష్, ఎండి షౌకత్, హఫీజ్ ఖలీల్ అహ్మద్, అబ్దుల్ సమద్, సయ్యద్ నసీర్ ముజ్జు, ఖుర్షిద్ హుసేన్, సయ్యద్ అర్షద్ సలీం జోషిలా, షౌకత్ సలీం, పాత ఈద్గా కబ్రస్థాన్ కమిటీ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. आपकी मदद से कमेटी आपके कल्याण में काम कर रही है। आप देखिए इस कब्रस्तान की सफाई के लिए, इस कब्रस्तान के रहने के लिए हम लोगों को हुकूमत और उसके नुमाइंदे भी करना पड़ा। आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने कब्रस्तान के अंदर 36 इलेक्ट्रिक के पोल लगाए गए हैं, 36 इलेक्ट्रिक के पोल लगाए गए हैं ताकि रात में मैं के लिए अंधेरा था। इन्हीं अंधेरे को दूर करने के लिए, आप लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए कमेटी आपके दरमियान में रहकर हुकूमत के वक्त और हमारे एमएलए साहब से नुमाइंदगी करकर और हमारे इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट की जो एक साहब है उनसे भी हम नुमाइंदगी करें, डेली साहब से और हमारे डेली साहब से हम उनसे मशहूर ममनून है जो हमारी बात को कबूल करते हुए और एमएलए साहब हमारी बात को कबूल करते हुए हमारे लड़के लगाने के लिए इस चीज को और इस चीज को आपके दरमियान में मदद है। दूसरी बात, दूसरा रमजान के अंदर हम आपकी तकलीफ को देखते हुए लोग सब्जी जगह पर और अपने बाबुओं को चप्पल रखकर हमारे आप लोग की प्रॉब्लम के लिए 8,000 आप लोग के चप्पल रखने की जगह बनाई गई है। ये जो संस्था लगाए गए हैं सिर्फ 15 दिन के अंदर आपके काम सारे कंट्री को पहुंचा है। और इंशाअल्लाह आप रमजान का चालू रहा कि आने वाले रमजान तक की वीजा के अंदर सभी इंतजाम कर देंगे। और बच्चों की तालीम के लिए मेरा मकसद है कि आप तांडूर के अंदर गरीब बच्चों के लिए तालीम की मुहैया की जाए। हमारे यहाँ इतने करोड़पति भगवान रहते हैं, इसीलिए हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि मैं हमारे बच्चों की तालीम दिलाने के लिए मैं अल्लाह से गुजारिश कर रहा हूँ। इसलिए अभी दुनिया में जब जाते हैं तो मालूम पड़ा हमारे साथ आने वाला नहीं है। हम तो आज खाली के खाली आए थे और खाली रहने वाले हैं, लेकिन मैं उन मामलों को गुजारिश कर रहा हूँ कि गरीब बच्चों का जो लोग खाली पाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों की तालीम के लिए दरगाह बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, ये बड़ी हमारे इरादे हैं। लेकिन गाँव के कोई भी बड़े करोड़पति लोग आगे नहीं आ रहे हैं। मैं तकरीबन नई बात से कोशिश कर रहा हूँ, मेरी उम्मीद है कि लोग नजर आई है कि हमारे तंदूर के मेरे साथ 50 लाख रुपये देने का वादा किया है और इंशाअल्लाह आज के अंदर 50 लाख कैंसर हो जाएंगे। और हमारे मंदिर में जो आप लोग भी नाम रहे हैं दूसरा रह चुके हैं उनके जरिए 20 लाख रुपये इस कब्रस्तान के अंदर हम कुछ करने के लिए नहीं है। चाचा जी के
और हमारे इमाम के अंदर कदीम ईदगाह के लिए बच्चों की तालीम के लिए 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। इंशाअल्लाह आने वाले इन 5 सालों के अंदर 5 करोड़ रुपया मुझे हासिल कर लेकर इन गरीब बच्चों के लिए जो तालीम पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बच्चों के लिए बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज बनाने का हमारा मंसूबा है। हम इस मंसूबे में कामयाब होंगे बशर्ते कि आपका ताउन आपकी दुआओं के दरमियान कोशिशों की वजह से ताली के अंदर आज जो बिल्डिंग खड़ी है सामने नीचे 52 और ऊपर 104 ये वक्त की ज्यादा ये मुसलमान ताली की ज्यादा आपके सामने खड़ी हुई है। मीटिंग कर और इसके साथ एक मोहम्मद की शक्ल में हम वहां पर गए और हमारे मसाइल को करने के लिए ये 3 दिन एक्सटेंशन देना हमको ये 3 दिन मदद मिली थी। हमको जरूर लाने की खबर बोला रात के 12-1 बजे तक के लोग कि यहाँ पर जरूरत पकड़े हैं वहां पर लेकिन मैं डीएसपी साहब का पुलिस वाले समाज साहिबी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि रात के 12-1 बजे तक की हमको ताउन की है और हमारे जो जानवर पकड़े हैं उस जानवरों को खुद अपने तौर पर हमारे टीम को लेकर डॉक्टरपुर गया था वहां से जानवरों को इधर बदलापुर से जहाँ से भी रुकावट हो रही थी हम उनके मजदूर और मजदूर है खासकर एमएलए साहब का और डीएसपी साहब का जो हमारे ताउन किए हैं हम उनके मजदूर और मजदूर हैं और आप हजार से मिलिए गुजारिश है इस वक्त हिंदू समाज के हालात पर आप नजर डालिए सिर्फ हमारे हुकूमत जो मुसलमानों के दरमियान में ऐसे लोगों को पैदा की है जो हम और मिलत की ऐसे बातें गलत अफवाहें फैलाकर हमारे सभों में हमारे इतिहास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ताल्लुक मुकाम छोटा है हम इस छोटे से मुकाम में हम तमाम हमारे आपस को दूर कर हम इस ताल्लुक की तरक्की के लिए इन गरीब और मासूम बच्चों की तरक्की के लिए हमको आगे बढ़ना है। आप लोगों के नामों से बगैर आगे नहीं बढ़ते। मैं तंजीम के सारे जिम्मेदारों से सियासी पार्टी के सारे जिम्मेदारों से इस जगह अक्सर गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे सबों में प्यार पैदा कीजिए, हमारी वोट की जायदादों की हिफाजत कीजिए, हमारी वोट की जायदादों के ऊपर इस्लामी हुकूमत जो संसद में बैठी हुई है हमारी वोट की जायदादें हमसे छीनना चाह रही है, हमसे लेना चाह रही है। लेकिन मुझे यकीन है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर और वो उलमाए कराम वोट के अवसर का जो राज दिन हमारी वोट की जायदादों की हिफाजत के लिए जलसे कर रहे हैं, जुलूसे निकाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी लाइफस्टाइल मुझे जो अपनी मुझे वो लोग कोशिशें कर रहे हैं। आप लोगों से भी अक्सर गुजारिश है जब भी इस मुकाम पर ताल्लुक के अंदर जो भी तंजीमें जो भी जमातें मुतहदा तौर पर ऐलान करें आप लबैक बोलकर उनका बात कीजिए। आप तमाम से गुजारिश है मैं आप लोगों का टाइम दिया हूँ। ربنا آتنا في الدنيا حسنة للمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر أموالنا وأموال المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا وسلم من اهتدى يا رب العالمين اللهم إنا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم احفظ الاسلام والمسلمين اللهم احفظ الاسلام والمسلمين اللهم احفظ الاسلام والمسلمين واخرج اليهود والنصارى والمشركين الا رحيم الا كريم الا تمام कामों को जाने वाले हैं अल्लाह आपकी कायनात को पैदा करने वाले हैं अल्लाह मफरूज है उनके कर्जों की अदायगी की शक्ल सूरत गैब से मुहैया फरमाइए। अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें नेक साले आफियत वाली औलाद नसीब फरमाइए। अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है अल्लाह जालिम के हक में इसको नाबूद फरमा दीजिए। अल्लाह मुसलमानों की जान की माल की ईमान की इज्जत की आबरू की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे सफों में इत्तेहाद नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे बहन बेटियों की
उसमें लगे हुए हैं, अल्लाह उन तमाम की हिफाजत फरमाइए, उन तमाम की मेहनतों को कबूल फरमाइए, अल्लाह उन तमाम को इखलास नसीब फरमाइए, तेरे लिए करने और तेरे लिए मरने की तौफीक नसीब फरमाइए। अल्लाह क्या ना करंट गया करंट गया करंट गया आइए बैठिए इनकी अदा के हम दिलों को मिला रहे हैं हमारे वहाँ भी जाना रहता ईदगाह से बता चुका हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे मनोहर रेड्डी साहब और महेंद्र रेड्डी साहब जो हम लोग कोऑपरेट करके जो यहाँ के लोगों की सहूलत के लिए जो फंड दे रहे हैं हम इनको कभी भूल नहीं सकते। और मनोहर रेड्डी साहब अपने 5 साल पीरियड के अंदर इस ईदगाह के लिए बच्चों की स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया अपने पीरियड में, और वो देने का वादा इस वक्त 50 लाख रुपये उन्होंने और हमारे स्पीकर है उन्होंने 50 लाख रुपए दिए हैं। इंशाल्लाह आजकल में सैंक्शन हो जाएगा। और हमारे महेंद्र रेड्डी साहब 20 लाख रुपए दे चुके हैं, सैंक्शन हो चुका है, प्रोसीडिंग आ चुकी है। के अंदर कब्रिस्तान के अंदर रोडों के काम शुरू होने वाले हैं सीमेंट के, और यहाँ पर मुस्लिम वेलफेयर से लेके यहाँ तक ड्रेन बनने वाली, उर्दू खाने बनने वाले हैं उनके अमाउंट में, और 10 लाख रुपए की इसी के अंदर उनकी बिल्डिंग बनने वाली है। ईद के फौरन बाद काम शुरू होने वाला है। और महेंद्र रेड्डी साहब भी ऐलान हमारे किए हैं, वादा किए हैं कि हम आपके ताउन के लिए, आपकी मदद के लिए, आपके बच्चों के लिए, तांडूर के मुसलमान माइनॉरिटीज के लिए, तांडूर की आवाम के लिए मैं भी आपको 1-2 करोड़ रुपए मेरे फंड आने वाला है। महेंद्र रेड्डी साहब से लेते गए हैं, देते हैं। अब मनोहर रेड्डी साहब और महेंद्र रेड्डी साहब ये दोनों तांडूर के मजबूत पिलर हैं। अब इनके खातों पे हम कितना मोटा छत डालना है डाल सकते हैं, हमको यकीन है कि बुनियादें मजबूत है महेंद्र रेड्डी साहब के और हमारे मनोहर रेड्डी साहब के। इस वजह से कि हम खुशकिस्मत हैं कि दोनों भी एक ही पार्टी से हैं। हम यही चाहते हैं कि तांडूर के अंदर अमन रहे, और पुलिस डिपार्टमेंट हमको रात के 12-1 बजे तक भी जो साथ दिए मैं उसको नहीं भूल सकता है। कल रात में भी 12-1 बजे तक भी हम लोग जनवरे लाए हैं, और मनोहर रेड्डी साहब कल मीटिंग कर पूरे लोगों को बुलाकर एक मीटिंग कर एक कमेटी बनाकर डीएसपी साहब के हैंड ओवर कर दिए हैं। हम रात में कमेटी मुसलसिल लोग साहब, हम लोग पूरे जितने भी जिम्मेदार थे, खुर्शीद भाई, कमलत्तर साहब, सब भी पूरे के पूरे हम लोग के काम में लगे हुए थे। रात में बिल्कुल खैर से जानवर अपने मुकाम तक पहुंच चुके हैं, और किसी को तकलीफ दिए बगैर भी आप लोग अपने मुकाम पर अपने घरों में कुर्बानी कीजिए।
मैं महेंद्र रेड्डी साहब का, मनोहर रेड्डी साहब का फिर एक मर्तबा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस डेवलपमेंट के ऊपर नजर रखिए। हम बिल्कुल सीधे साधे, आप लोग आधी रात को बोलिए, हम आपके खाते को खाना लगा के ठहरने के लिए तैयार है। हम कुछ नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों की तरक्की हो, हमारे गरीब लोग तरक्की करें, हमारे स्कूल, हमारे मदरसे, हमारी बिल्डिंगें बने, हमारे कब्रिस्तान साफ रहे, कब्रिस्तान की दीवारें बने, ईदगाह की दीवारें बने। हम कुछ नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं आपसे कि तांडुर एक अमन का गहवारा है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक सबूत है तांडुर के अंदर। लेकिन मैं एक बात फिर बांगे दहल कर रहा हूँ कि महेंद्र रेड्डी साहब की मौजूदगी के अंदर तांडुर के अंदर एक 2 मरतबा कम्युनल राइट्स हो गए थे कुछ बदमाशी की वजह से, लेकिन महेंद्र रेड्डी साहब के आने के बाद कोई कम्युनल राइट्स नहीं हुए हैं, बहुत इससे लेके चले हैं। उसी तरह मैं मनोहर रेड्डी साहब को भी यही कह रहा हूँ कि हम तमाम को लेकर चलिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं मनोहर रेड्डी साहब भी। मैं मनोहर रेड्डी साहब का भी ममनून मशकूर हूँ। मनोहर रेड्डी साहब की अतराफ की जो टीम है, उस टीम को भी मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मनोहर रेड्डी साहब के भी हाथ मजबूत कीजिए, महेंद्र रेड्डी साहब के भी हाथ मजबूत कीजिए। ये दोनों को अगर लेके चले तो तांडुर बहुत पीसफुल और पुरसुकून अंदाज में चल सकता है। मैं इतना ही होता क्यों कि आगे उनको ईदगाह को जाना है, वहाँ पर भी नमाज मैं उनको ये कर रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद, आप लोग हमारे पास यहाँ आए हैं, हम आपके मशगूल और मजबूर हैं। आप लोग चाहिए, अब चलता है। ये कैसी हमारी ईद है, देखिए कैसे रंग बिरंग के फूल हमारे जी कि हमारे जो अल्फाज जो बयान हम खोले हैं अवाम के सामने, काश के वो अगर रहते तो सुनकर दिल उनका भी खुश होता है कि कैसा गुलदस्ता, कैसे फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। देखिए आप, ये एक तरफ हमारे सीनियर रहनुमा, हमारे सीनियर सियासतदान महेंद्र रेड्डी साहब एक तरफ है, एक नए नवेले जो मेहमान तांडुर के लोगों में कितनी मोहब्बत है, एक नए नवेले एमएलए साहब को भी हम किस तरह से सीने से लगाकर यहाँ पर इनको एमएलए बनाए हैं, ये भी गुलदस्ता यहाँ पर मौजूद है। साबिका एमएलए साहब हमारे जो हमारे ईदगाह के लिए भी, हमारे कॉम्प्लेक्स के लिए भी मदद की है 25 लाख की, वो भी बनाए, हम इसके भी मशकूर और ममनून है। ये हमारे मेहमान हैं, ईद की मुबारकबाद देने के लिए आते हैं, यहाँ हमको सियासत करना नहीं है, हम तमाम एक होकर चल रहा है हमारे को। मैं इसलिए तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ रोहित रेड्डी साहब का, मौजूदा एमएलए मनोहर रेड्डी साहब का, और हमारे अर्दिल अजीज महेंद्र रेड्डी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़िए थोड़ी एमएलए मनोहर रेड्डी को जितने भी जिम्मेदार मौजूद है हम सबको, और हमारे तांडुर के सारे मुसलमान बुजुर्गों को, भाई बहनों को, माओं को, सब लोगों को भी ईद उल अदा मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों की कुर्बानियों को कबूल करे, और आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी तांडुर के तरक्की के लिए, तांडुर में अमन और शांति बरकरार रखने के लिए, और तांडुर में हर घर में खुशियाँ लाने के लिए आपके दुआओं में याद करिए, और तांडुर में हर एक बंदा अच्छी तरह से सब लोग मिलजुल के रहे जैसा आप लोग दुआ करते बोल के आप सबसे गुजारिश करते हुए फिर एक बार ईद उल अदा मुबारकबाद पेश करते हुए अल्लाह सलीम भाई जर्रा बड़ा దాంట్లో రంజాన్ కానీ ఏ పండుగలు వచ్చినా కూడా కలిసి ఉంటాం. అభివృద్ధి పరంగా కూడా మరి ఏ అవకాశం వచ్చినా కూడా మేము కూడా చేయడం జరిగింది. ఎలక్షన్ల ముందు కూడా ఇంకా ఈ ప్రాంతానికి కూడా ₹1,00,000 ఇచ్చినాం, మొన్న కూడా 20 లక్షలు ఇచ్చినాం. ఏ అవకాశం వచ్చినప్పుడు కూడా మైనార్టీస్ గ్రామాల కానీ ఇక్కడ అవకాశం వచ్చినప్పుడు మరి నిధులించుకుంటూ పనిచేయడం కూడా జరిగింది. మరి మరొకసారి అందరూ కూడా ఈ ముబారక్ చెప్తూ मनोहर रेड्डी साहब आपको मुखातिब మైనార్టీ సోదరులందరూ కూడా బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటే గౌరవ ఎమ్మెల్సీ మహేందర్ రెడ్డి గారికి, బైరెడ్డి రెడ్డి గారికి, ఆదిలయ్య గారికి, ఇక్కడ మైనార్టీ సోదరులందరూ కూడా మరొకసారి బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ, ఆదిపై ఎప్పుడు కూడా నాకు ఈ డెవలప్మెంట్ కావాలా, నాకు ఎడ్యుకేషన్ ఒక ట్రస్ట్ పరంగా చాలా అభివృద్ధి చేయాలి ఎదుగుదలని చెప్పి చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది. చెప్పినప్పుడే ఇప్పటికే ఒక 50 లక్షలు కూడా నేను స్పీకర్గా కూడా 50 lakhs ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఖచ్చితంగా తాండూరు అభివృద్ధిలో ఖచ్చితంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో, ఎందుకంటే మీ అందరూ కూడా మీ సహకారం కూడా మీరు అందరూ కూడా అండదండలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నారు, రేవంత్ రెడ్డి గారికి అండదండలు ఉన్నారు కనుక వారి సహకారంతో
ప్రతి ఈదిగల ఏ ఒక్క తాండూరులో ఉన్నటువంటి తాండూరు నియోజకవర్గంలో ఈదిగల కన్నిటి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో అన్ని ఈదిగలు డెవలప్ చేద్దాం. దాంతోపాటు ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా ఇచ్చి అందరికీ ప్రతి ఇంట్లో మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉండే విధంగా నేను ఖచ్చితంగా చేస్తానని చెప్పి కూడా మీకు అందరికీ తెలియజేసుకుంటాను. శాంతిలో భాగంగా అభివృద్ధిలో భాగంగా శాంతిలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ తాండూరు సోదరుగా అందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి మీకు అందరికీ మనం గొప్పగా జరుపుకునే సంవత్సరంలో 2 పండుగలు రంజాన్ కానీ బక్రీద్ కానీ ఈరోజు బక్రీద్ ఒక త్యాగాలకు ఫలంగా మనం ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాం. మరొకసారి మీకు అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు.